تعلیم کے شعبے میں نمایاں مقام رکھنے والے الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیے آج کا دن کچھ خاص تھا۔ آل انڈیا کیرلا مسلم کلچرل سینٹر کے وفد نے آج الامین کیمپس بنگلور کا دورہ کیا۔ سید منور علی شہاب تنگڑ کی صدارت میں کیرلا مسلم کلچرل سینٹر کے وفد نے الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین عمر اسماعیل خان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ادارے کے سیکریٹری الامین رتنا ڈاکٹر سبحان شریف اور دیگر افراد موجود تھے۔ اس خاص موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کرتے ہوئے آل انڈیا کیرلا مسلم کلچرل سینٹر کے صدر سید منور علی شہاب تنگڑ کو تہنیت پیش کی گئی۔ تقریب میں تعلیمی صورتحال، تعلیمی ترقی کے لیے مزید کیا کوششیں ہوں، اس سلسلے میں کھل کر گفتگو ہوئی۔ چلیے اس پورے دورے کے سلسلے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ کے ذریعے۔ بنگلور الامین کیمپس سے پیش ہے ایک خاص رپورٹ۔ Al-Amin institution of group of institution, which is founded by a great visionary leader, Dr. Mumtaz Khan, in 1966, and now it has come as a hub of education. It is a center of excellence. I am very astonished to see 2 lakh students are studying under this institution, and in Kerala, many of our students, they come to this institution and get very good education. And when I came, this is the first time I am coming here physically. I have heard a lot about this, and I very impressed our chairman Dr. Umar and other secretaries. They are explaining and really witnessing a good progress in this sector. And what I see, especially people from Kerala, they have a lot of options for their studies here. At the Modern Kerala, different streams, different degrees program, postgraduate program, LLB, pharmacy and things like that. And it's in a reasonable fee. That is the most attractive thing I have seen here. So I recommend you, to do further your studies. Inshallah, you can see what is providing here, and inshallah it is. I see, this group of people, under the leadership of chairman, doing a very tremendous job. Lot of especially scholarships, access to the needy people also is available, and I'm very happy to see they're having institution in all of the state except 2 states, Andhra and Tamil Nadu. Yeah. And I'm very it is a privilege to visit institution, and we look forward to collaborate, to do the service for the society. And we are also from other center. We are an NGO which Shahab Tandal Center for Humanity in Bangalore. I serve as the president, and we have now a lot of needy, poor, patient people who are coming from outside Kerala. That we are giving all kind of services, giving the medicines, giving the facility to take appointments for the patients, and also giving shelter and food and things like that. And now we are running 3rd mass wedding going on now, and 100 couple every year. And I have come to Bangalore to attend this function, and now I came here to visit. And these are, lot of people are doing different services in different areas. So we all have to collaborate and do the service. I think will really help the people in India. AMCC के लोग हैं वो, और माशाल्लाह केरला में बहुत अच्छे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हर फील्ड से। अक्सर लोग उनमें बिजनेसमैन हैं, फुल टाइम वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने में डिवोट नहीं कर सकते, लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ में हमारे से बहुत आगे हैं वो।
तो हम एजुकेशन में बहुत स्ट्रांग है, हमारा फुल टाइम हम एजुकेशन में डिवोट कर रहे हैं। तो उनको हमने बताया कि अगर हमें ब्रिज हो जाए तो आप लोगों के साथ हमारा फुल टाइम एजुकेशन है, कंसंट्रेशन है, और आप लोग सोशल एक्टिविटीज़ में हैं, मिल के हम करेंगे तो कौम के लिए बेहतर फ़ायदा होगा। और क्योंकि केरला में इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, एजुकेशनली भी स्ट्रांग है, पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है, और हम लोग यहाँ एजुकेशन में हम एक्सपर्ट्स हैं, इतने साल से हमारे 50 से ज़्यादा साल से हम एजुकेशन चला रहे हैं इधर। तो उनको कन्विंस करें कि स्टूडेंट्स को इधर भेजें और एक स्टूडेंट्स के वास्ते फ्री हॉस्टल बनाएं, ताकि कोई भी आउट ऑफ स्टेट बच्चा आके इधर रखे, फ्री में पढ़े, तो उस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के लिए। तो ये हमारा पहला प्रपोजल है। दूसरा प्रपोजल, हमारी ख्वाहिश क्या है कि हमें लोग जो है मिलना है, जितने भी इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया हैं, रहंदे कोई भी स्टेट में रहंदे, तमिलियंस रहंदे, मलयालीज रहंदे, या कश्मीर के रहंदे, बंगाल के रहंदे, हमें सब मिलना है, मुसलमानों को मिलना है, एक होना है, आपस में अपने हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं हमें शेयर करना है और दूसरों से सीखना है और सीख के मिल के काम करना है। ये मेरा ख्याल है। इस वास्ते आज फर्स्ट जो मीटिंग जो है केरला वालों से, इंशाल्लाह दूसरे की स्टेट्स में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो भी आएंगे, और ऐसा थोड़े थोड़े हम और ब्रिजेस बनाएंगे, और इंशाल्लाह हमारे कौम को मदद करने की कोशिश करेंगे। तो अलमीन क्या रोल अदा करेगा इसमें, सबको जोड़ने में की कोशिश होगी अलमीन के तहत? बिल्कुल सर, हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ब्रिजेस बनाएं, सबसे मिलें, सब मिलकर रहने में ज़्यादा ये फ़ायदा है, हमारी ताकत बढ़ेगी, हम एजुकेशन में स्ट्रांग हैं, दूसरे लोगों से हेल्प लेंगे। अब स्कॉलरशिप कमेटी चलाना है, अगर दूसरे जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं वो हमको हेल्प करें, या उनके CSR फंड से हमको हेल्प करें, या कोई भी डोनेशन हमको दे, हम जो गरीब बच्चे हैं उनके वास्ते सहूलत दे सकते हैं। जो कोविड के बाद बहुत से लोग इकोनॉमिकली बहुत मार खाए हैं कोविड की वजह से, उनको हेल्प कर सकते हैं। ये हमारा जनाब उमर इस्माइल खान साहब ने उनको दावत दी कि वो अलमीन को आए और यहाँ के जो हमारे खिदमत हैं उससे मुतासिर हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से वो आज सुबह में यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और हमें भी बहुत खुशी हुई कि ऑल इंडिया लेवल पर कि वो जो KMCC है वो बहुत खिदमत कर रहे हैं, मोस्ट पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर में वो फ्री दवाइयाँ देना, ऑपरेशन कराना और एम्बुलेंस का इंतज़ाम कराना, ये सब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नेक शुगुन है, क्योंकि हम इदारों को चाहिए कि डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो और सोशल सर्विस हो, इसमें हमको खिदमत करना चाहिए। और ये खिदमत करने से जो इंसानियत को जो फ़ायदा होना है ये ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। और इस मौके पर आज हमारे चेयरमैन साहब ने एक बेहतरीन सजेशन अलमीन की जानिब से जो जमात आई थी उनके सामने पेश की कि 100 अहबाब का एक फ्री हॉस्टल बनाए बेंगलुरु में। ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी जो हॉस्टल्स थे उसमें बहुत सारे मायानाज हस्तियाँ हॉस्टल में पढ़कर कौम मिलत के वास्ते खिदमत करने के लिए आए। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रपोज़ल है, अगर वो आए तो इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छा होगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे वसाइल वसी हैं, और इसमें भी हम अलमीन से हॉस्टल में फैसिलिटी फराहम किए हैं बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए गौसिया पॉलिटेक्निक पे हमने हॉस्टल फैसिलिटी फराहम किए हैं। ये नाकाफ़ी है, अगर ऐसा कोई एक अच्छा हॉस्टल आया सामने तो बेहतरीन है कि जो बाहर से जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी आते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से जो पौधा बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने लगाया था, आज तनाव दरख्त बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के ज़ेर एहतमाम 250 अदारे और 2 लाख बच्चे इसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.